Hello, dear students. Welcome to the class today. How are you all doing? Yes, I hope you all are doing fine. Children, we are carrying on with this chapter. Actually, it's a big chapter, so it's taking a bit of time to get it completed. But now we are into the last topic. And last topic, of course, we have second last topic. And we have started it in the last video that you have seen. Yeah, we are carrying on with this topic, which is talking about peace and temples and the people who were living in those areas. And especially ये अभी भी हम बंगाल के बारे में ही बातें कर रहे हैं. Right now we are talking about Bengal only. Got it? So here we have about the पीर. पहला तो हमने समझा कि who are the peers. ये पीर कौन होते हैं, सबसे पहले हमने इसको समझने की कोशिश की. And in that we understood they were the people who were appointed by the Mughals. मुगल का राज होने के बाद इन लोगों ने यहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश किया. They have built some mosques. They were the people who have left everything, who have renounced. सारी चीजें वो छोड़ चुके थे. And the people who were from the Western Bengal, they were the people who migrated to the Eastern Bengal region. कहाँ पे? ढाका के पास. Got it? It was near Dhaka where these people have settled. Got it? Now, if you can see the informations that are given here, these were the leaders who functioned as teachers, educators. Educators means educators, of course. And sometimes they got some supernatural powers. कुछ अलग तरीके की powers इनको मिलती थी. And बहुत respect इनको मिलता था. In the Bengal region, they used to get lot of respect, lot of, people used to consider that their powers are the one power that is given to them by God. भगवान ने ही इनको भेजा है, भगवान की वजह से इनके पास ये सब powers हैं. And definitely out of respect, they used to call them peers. And Bengal was at this time going on through various changes. बहुत सारे changes हो रहे थे. We have seen last topic that we have done was that lot of cultural changes and religious transformation, all these things were happening, which was taking Bengal to a very, very new era. Okay? And there were the Buddhist people, the Buddhist deities were there. कभी कभी क्या होता था, other Sufis were there. The term included saints or Sufis, religious personalities were there. Of course, पीर हैं, बाबा हैं, साधु हैं. तो इनका जो टर्मिनोलॉजी है, इनका जो मीनिंग है, that is related to the religious terms only. Okay? Hindu cultures were there, Buddhist deities were there. They were having an animistic spirit. What is animistic? Animistic means कि कोई भी living being है ना, living being को आप बताओगे कि it is having some supernatural powers. ठीक है? Any animal, any plant, any human being. So a culture of peer was becoming very common, very popular in Bengal. खाली Bengal नहीं, they were spreading all over. हर जगह पे, काफी सारे जगह पे हमको पीर बाबा लोगों के बारे में पता चलता है. And इनका जो श्राइन था, where they had been buried, it is found at many places. सबसे पहले आप ये समझो, they were called as peers and it included,
था? सेंट्स, ओके, क्योंकि जो साधु हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को रिनाउंस किया गया है, those who have left the world, those who are serving the humankind, those who are serving the mankind, उनको इस कैटेगरी में रखा गया था. So they were the saints और सूफीज. ठीक है, भक्ति ट्रेडिशंस. अभी जो लास्ट चैप्टर हमने किया है, दीज टर्मिनोलॉजीज आर कमिंग फ्रॉम देयर. ठीक है, सूफीज, other religious personalities, मैंने कहा ना मेजरली इट वाज रिलेटेड टू रिलीजन. other religious personalities were there and कभी कभी क्या होता था इसमें, there were some soldiers, Hindu and Buddhist deities and even animistic spirits. ठीक है, sometimes there were soldiers, Buddhist and some animistic spirits. फिर से समझो, animistic people, animistic spirit means some people with some supernatural powers. Got it? That is there. Now what happened, children? Peers, they started settling there. Bengal में ये settle होने लग गए. And the cult of Peer that was there, I mean the culture of Peer was becoming very popular. Okay, and इसमें क्या था कि their shrines, इनका मतलब where they were buried, वहां पे लोगों ने क्या किया, एक they used to make a structure which signified that a holy spirit is there. कि somebody who has got some powers, उस तरह के लोग यहाँ पे हैं. These kind of people with some supernatural powers are lying there. तो shrine means a religious place, a place which is related to some holy incident or some holy manner. These kind of people, these kind of structures were constructed here. Now what happened? बंगाल में क्या हुआ कि एक cult started developing of constructing the temples. Lot of temples were constructed from late 15th century. Okay, पहला तो आपने ये पीर समझ लिया. ठीक है, पीर आ गए, यहाँ पे सेटल हो गए, काफी सारे लोगों का इनको प्यार मिला, काफी सारे लोग इनसे अपने आप को कनेक्ट कर पाते थे. That was the cult of Peer that has developed. Okay, another thing was there, the temple building. Temple building started from late 15th century. Many people settled here and they took up this task. They took up this thing of constructing the temples, making the temples. कौन बनाता था? Who were the people? हाँ, started from temple building 15th century से शुरू हुआ and it continued till 19th century. Lot of temples were built. Chapter 2 and 5 में हमने कुछ temples के बारे में पढ़ा है. ठीक है, आप पहले के जो chapters हैं उनको एक बारी देख लीजिएगा. Once if you go through it, you will be finding that we have done about some temples there. Okay, and who were making these temples? It was built by individuals. कोई इंसान, जैसे सब बड़े बड़े जमींदार हैं, जागीरदार हैं, तालुकदार हैं. These were the people who were very powerful people in Bengal. तो they used to construct religious structures. ये बनाते थे किस लिए? ठीक है, who were becoming powerful. ठीक है, it was constructed. It was temple building. Please, it means temple building.
It was constructed by some powerful people, ठीक है, एंड पावरफुल पीपल ने बनाया, लेकिन इसको बनाने की जरूरत क्या है? बिकॉज दे वॉन्टेड टू शो देयर पावर, दे वॉन्टेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड प्रोक्लेम देयर पिटी, प्रोक्लेम देयर सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी. लोग उनको पसंद करें, लोग अपना सपोर्ट उनको दें, इसके लिए इस तरह के टेम्पल्स इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए. गॉट इट? ओके, सम पावरफुल पीपल, they wanted to demonstrate their power. Temple building activity, actually पुराने जमाने में भी all the temples that are there in the south में you will find great construction work, big construction work. These temples also were constructed and बड़े से बड़ा टेम्पल बनाते थे. दे यूज टू मेक ह्यूज टेम्पल्स, बिग टेम्पल्स. किस लिए बनाते थे? दे वांटेड टू शो ऑफ देयर पावर. जब अपने आप को पावर, तो आपने उतना ऊंचा टेम्पल बनाया है, मुझसे 10 गुना ज्यादा ऊंचा टेम्पल बनाएंगे. ठीक है, दैट काइंड ऑफ फीलिंग द पीपल हैव. नाउ मेनी मॉडेस्ट, ठीक है, ब्रिक एंड टेराकोटा टेम्पल्स वेर देयर इन बंगाल with the support of low social group. Okay, many modest brick and terracotta temples were built with the help of lower social groups. इसको समझने की कोशिश करना. Dear students, please try to understand this point. क्या है? पहला तो आपको यही नहीं समझ में आएगा. You will try to understand what do you mean by modest. ठीक है, अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगी, वी हैव टू कंपेयर द टेम्पल्स विच आर फाउंड इन द साउथ इंडिया विथ द टेम्पल्स विच आर फाउंड इन नॉर्थ इंडिया. ओके, बहुत ज्यादा बड़े, बहुत ज्यादा पैसा लगा के टेम्पल्स नहीं बनाए. टेम्पल्स वेर श्योरली कंस्ट्रक्टेड, बट देन दीज टेम्पल्स वेर वेरी, आई मीन, नॉट सिंपल. मॉडेस्ट का मतलब है सिंपल, खाली ईंटें जोड़ के. ठीक है, अभी टेराकोटा क्या है? टेराकोटा में यू विल फाइंड कि मिट्टी के बहुत सारे डिजाइनर पॉट्स, डिजाइनर मतलब इट इज अ वेरी फाइन क्वालिटी मड. ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये जो मिट्टी होती है, उसका टेराकोटा फिगर्स बनता है. आप देखोगे किसी भी कुम्हार उम्हार के यहाँ जाओगे ना, वहां पे यू विल फाइंड मिट्टी के घंटियां होती हैं, आपकी डेकोरेशन पीसेस होते हैं, सम स्ट्रक्चर्स दैट आर देयर विच इज वेरी यूनिक, दैट इज कॉल्ड एज टेराकोटा. ओके, लोग इससे अपना घर बहुत सजाते हैं. दिस इज मेजरली यूज टू डेकोरेट द हाउसेस. ओके, तो modest brick and terracotta temples were built. एंड कौन बनाता था? विद द हेल्प ऑफ ये लो सोशल ग्रुप्स. बहुत अमीर नहीं होते थे, गरीब हैं. एंड कास्ट सिस्टम वॉज वेरी प्रिवेलेंट इन बंगाल. बंगाल में व्हाट वॉज देयर वॉज द कास्ट सिस्टम. तो इसलिए यही लोअर कास्ट के लोग जो हैं, इनकी मदद से इस तरह के टेम्पल्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते थे. ओके, मॉडेस्ट, it is called as modest temples were constructed. Got it? And ये मॉडल, ये जो छोटे सोशल ग्रुप्स थे कौन थे? ये they were like कोलू, कंसारी, like कोलू, कंसारी. These are the name of small social groups. ठीक है, ये जो छोटी, these are the groups, social groups
जाति, छोटी जाति के लोग थे ये, ठीक है। कोलू, कंसारी, कोलू मीन्स द पीपल हु यूज टू तेल का काम, सरसों तेल बहुत ज्यादा, आई मीन मस्टर्ड ऑयल इज वेरी मच यूज्ड इन बंगाल। तो वहां पे जो तेल निकालने का काम करते थे, यस, सरसों का तेल कैसे निकलता है, कोलू से निकलता है, दैट इज देयर, अ प्रोसेस इज देयर। आप लोग गांव के रहने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा तेल कैसे। तो कोलू थे, कंसारी थे। कंसारी क्या थे? कंसारी वर दोस पीपल जो मंदिरों के लिए घंटे बनाते थे, ठीक है। दे वेर द बेल मेटल वर्कर्स। ओके, मंदिरों में जो घंटी लगती है वो भी तो कोई बनाता ही होगा ना, ऊपर से कोई थोड़ी आता है। सो दे वेर द पीपल हु यूज टू मेक कंसारी। कंसारी वेर द पीपल हु वेर मेकिंग बेल्स। Now what happened कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज दे क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, नए नए तरीके से बिजनेस सिखा रहे थे। मेनी फैमिलीज, ये जो सोशल ग्रुप की फैमिलीज थी, दे स्टार्टेड अवेलिंग दीज फैसिलिटीज। उन्होंने कहा, अभी तक दे वर वेरी मच डाउन ट्रॉडन, बहुत ही दबाए हुए, सताए हुए लोग थे। सो व्हेन दे गॉट टू सी दैट देयर आर सम पीपल हु आर सपोर्टिंग देम, जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग आगे आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, तो क्या हुआ कि दे स्टार्टेड टेकिंग दैट। सब किसको अच्छा नहीं लगता? हु डजंट लाइक दैट somebody should support them? Okay, so new economic opportunities were there, and the social and economic condition of these people improved. कोलू, कंसारी, ये जो लोग हैं ना, पहले इनकी कंडीशन बहुत बुरी हुआ करती थी, एंड अब क्या हुआ, देयर कंडीशन स्टार्टेड इंप्रूविंग, क्योंकि कास्ट सिस्टम, जैसा मैंने बताया है, हमारी सोसाइटी में दैट वाज अ वेरी प्रीवैलेंट सिस्टम, बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम को माना जाता था। नाउ व्हाट हैपेंड कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, यूरोप के जो ये द ब्रिटिशर्स हु वर कमिंग, they were bringing new ideas, new customs, new traditions. People accepted it. कास्ट सिस्टम से बिल्कुल थक गए थे, परेशान हो गए थे, तो they accepted these support, ठीक है। So with the coming of European ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। ब्रिटिशर्स हैड अ बिग, कोलकाता में पहले क्या था, ब्रिटिशर्स हैड देयर कैपिटल इन कोलकाता। दिल्ली में तो बाद में बना है, यस, 1911 और 1912 में बना है। हाँ, नेक्स्ट ईयर यू विल बी स्टडिंग अबाउट इट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो कोलकाता वाज द बेस जहां से कि ब्रिटिशर्स ने अपना बिजनेस शुरू किया था। सो विद द कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, the condition of these social groups improved. Got it? The condition of lower social groups improved. ठीक है, इनकी स्थिति सुधरती चली गई। पहले बहुत खराब थी, अब इनको सपोर्ट मिला, एंड अब क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि ये कोलू एंड कंसारी, इकोनॉमिक पोजीशन इनकी इंप्रूव कर गई। नाउ देयर इकोनॉमिक पोजीशन इंप्रूव विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज काइंड ऑफ टेम्पल्स। हाँ, उन्होंने भी सोचा कि कब तक लोअर कास्ट रहेंगे और कब तक सहते रहेंगे, हाउ लॉन्ग विल दे टॉलरेट एंड हाउ लॉन्ग विल दे बी द लोअर कास्ट, एंड कास्ट के चक्करों में पड़े रहेंगे। So when they got a chance to improve their condition, they improved. And local deities, they were once worshipped in the thatched huts. पहले क्या होता था ना, मंदिरों के ऊपर छोटी छोटी झोपड़ियां बना देते थे, पैसे नहीं होते थे लोगों के पास। But now people started giving money. ये जो I mean the rich people were there, they started donating money. तो अब क्या हो गया, मंदिर के कंस्ट्रक्शन होने लगे, छोटे छोटे हट बना के वहां पे they used to give, and ये जो हट बनाते थे ना, इन हट्स का नाम होता था, यस, प्लीज अंडरस्टैंड कि लोकल डीटीज का मतलब समझना, गॉड,
गॉड के लिए ही अनदर वर्ड है, लेकिन गॉड का जैसे कि विष्णु है, शिवा है, डीटीज में मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंड कि एक पत्थर रखा हुआ है, एक ऐसे ही एक पेड़ का टुकड़ा है, तो उसको डीटी कहते थे, विच डिड नॉट हैड अ ह्यूमन फॉर्म, बट देन पीपल हैड बिलीव कि अरे इसके अंदर भगवान है। होता नहीं है कितनी बार गाँव में तो आप बहुत देखोगे कि पीपल से हो हियर इज गॉड, तो ये भगवान है यहाँ पे, तो इनका बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट होना चाहिए। दैट इज दैट। सो लोकल डीटीज वेयर वर्शिप, जो आई मीन एट द लोकल लेवल हु द गॉड्स हु वेयर देयर, एंड उनके टेम्पल कहाँ बनते थे? वर्शिप इन thatched huts। thatched huts, huts मतलब कि ये ऐसे करके ये बना हुआ है, दिस इज देयर एंड देन हट इज देयर, इसके ऊपर इन्होंने बड़े अच्छे से रूफ बना दिया है। दैट काइंड ऑफ अ हट वाज देयर, जहां पे कि भगवान की पूजा करते थे ये लोग। गॉट इट? नाउ इमेजिन दिस काइंड ऑफ अ कंस्ट्रक्शन इज देयर, एंड बांग्ला में क्या कहते थे? बांग्ला डोम। क्या होता था? इसको छत को, हट को इन्होंने क्या किया? दे हैव गिवन सम नेम। नेम क्या था? दो चाला, चाओ चाला। These are the names of these kind of hut made temples। ये जो झोपड़ियों में जो मंदिर बने हुए थे, उसके ऊपर इन्होंने इस तरह के कंस्ट्रक्शन किए, जिसका मतलब डबल रूफ, दो तरीके का छत बना हुआ है। ठीक है, डबल रूफ इज दो चाला एंड फोर रूफ इज चौचाला। चौ मतलब चार। ओके, फोर रूफ्ड स्ट्रक्चर ऑफ द thatched hut। तो बांग्ला में रिमेंबर द डोम्स वेयर देयर, वो पहले जो हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में हमने पढ़ा हुआ है अबाउट दिस, द डोम्स, दीज वेयर द डोम्स। गॉट इट? बड़ा सा, जिसके अंदर की मतलब कि द मस्जिद काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स वेयर देयर। तो फोर रूफ्ड स्ट्रक्चर्स दैट वेयर देयर, ये जो चार चौचाला था, four triangular roofs placed on the four walls move up to converge on a curved line or a point। Please understand कि four roof structure that was there, चार चौचाला जो था, that was कि चार तरीके के ट्रायंगल्स को बना के और इनको जोड़ के एक अलग से बड़ा रूफ बनता था। Four kind of triangles were there, four triangular roofs are there। You see, it is placed on the four walls। ठीक है, चार दीवारें हैं। Got it? I'm very bad at making। ये जो दीवारें हैं, हर एक दीवार के ऊपर एक रूफ है। एवरी वॉल, ये जो जितने वॉल है ना, चार तरफ के जो वॉल्स है, हर एक वॉल के ऊपर एक रूफ है, और उसको फिर उठा के यहाँ पे एक बड़ा सा रूफ बनाया गया है, चौचाला। ठीक है, क्या कहते थे इसको? चौचाला। ओके, तो टेम्पल वॉज यूजुअली बिल्ट ऑन स्क्वायर प्लेटफॉर्म होता था। हाँ, one square platform is there, temple is constructed on that only, and interior was plain। इंटीरियर बहुत ही सिंपल होता था, लेकिन आउटर वॉल में बहुत सारे डेकोरेशंस होते थे। These kind of temples that were there, आउटर वॉल में lot of decorations were there, and क्या था? पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स, टेराकोटा टैबलेट्स, बहुत आई मीन द वॉल्स, आउटर वॉल्स दैट वेर देयर वेर वेरी ब्यूटिफुली कंस्ट्रक्टेड। स्पेशली क्या है, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। कहां पे? वेयर, विच एग्जाम्पल? विष्णुपुर। ठीक है, इस ये जो टेम्पल की हम बात कर रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, विष्णुपुर इन द बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। विष्णुपुर in Bankura district।
वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का हमको कंस्ट्रक्शन मिलता है, कभी आप देखना। ओके, बहुत सम टेम्पल्स आर तो सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड कि मतलब कहने की बात नहीं है। दैट काइंड ऑफ ब्यूटी वॉज देयर, गॉट इट। सो चिल्ड्रन, आई जस्ट शो यू दीज, ये जो मैंने इतने सारे हमने टेम्पल्स के बारे में डिस्कस किया है, द टेम्पल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू दोज टेम्पल्स। गॉट इट चिल्ड्रन? कम लेट्स सी दोज टेम्पल्स। Dear students, just now we were talking about peirs and temples. In that line, following that, the peirs and temples we are talking about, please understand, कल मैंने आपको मैप दिखाया था, that how people from West Bengal shifted to East Bengal and temples were constructed. एक example I had given you today, that is in Vishnupur district, Vishnupur in Bankura district, वहाँ पे we find roof temples. हाँ, ऐसे temples, क्योंकि पहले क्या था, in Bengal people were very, the poor people also wanted to construct temple. जिनका भी भगवान के प्रति थोड़ा भी विश्वास है, anybody and any person who has a bit of belief on God, they wanted to make temples. यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ढाका में the Mughals have made their capital. ये हमने कल ही डिस्कस किया था. Dear students, we have discussed it yesterday only. मैं आपको जो दिखाना चाह रही थी, that there were Hindus, Buddhists and animistic spirits. Please understand, Hindu, Buddhist deities, animistic spirits, ये क्योंकि पीर हम जिनको कह रहे हैं, the people respected these पीर्स a lot. और इन पीर्स के अंदर कहते हैं कि अगर रेगुलरली इनका दर्शन किया जाए, if people go and visit their shrine, जहाँ पे इनको बेरी किया गया है, if the people visit those shrines regularly, आप जो मांगते हैं पूरा हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं. I am not supporting this. I am just sharing कि किस तरह की बातें लोगों के बीच में मशहूर है. So I told you about these पीर्स. ये पीर्स थे. सबसे पहला तो इन्होंने क्या किया, they became very popular. Animistic का मैं आपको explanation दिखाना चाह रही थी. That attribution of living soul to plants, inanimate objects and natural phenomena. Okay? Please understand कि कोई भी जीवित, soul is आत्मा, attribution of living soul, एक कोई जीवित है, plants and inanimate objects, natural phenomena, nature में जो नज़र आ रहा है, उससे related अगर कुछ भी है, तो उसको अगर हम importance उससे attach करते हैं, if we are attaching importance to that and considering it as supernatural powers, तो उसको हम animistic कहते हैं. Okay? Then we have the low social groups. इसमें हमने दो लोगों के बारे में पढ़ा. We have read about two kinds of people. One is the Kollu and the other is the Kansari. कंसारी जो घंटी बनाने का काम करते हैं, बेल मेटल, ठीक है, बेल मेटल वर्कर, जो घंटियों में जो मेटल यूज होता है उसको बनाने का काम जो लोग करते हैं, दे आर कॉल्ड एज कंसारी. Others are called as कोल्लू. ओके, इसके बाद ये रहे वो मंदिर जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी. कैन यू सी दिस टेम्पल्स चिल्ड्रन? प्लीज अंडरस्टैंड. यस, ये आपको झोपड़ी दिख रही है, लेकिन माय डियर चिल्ड्रन, ये झोपड़ी नहीं है. दिस इज नॉट अ हट, दिस इज अ टेम्पल. इसके अंदर इनके भगवान थे. जो बंगाल में जो लोग जाके सेटल हुए,
उनके भगवान को उन्होंने इसके अंदर में एस्टैब्लिश किया. गॉट इट? प्लीज अंडरस्टैंड दीज वेयर द टेम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ हट. एक ये भी आप टेम्पल देखिए, 4 रूफ्ड. ये देख रहे हैं आप, दिस वॉल के ऊपर एक दीवार, 2 दीवार, पीछे भी 2 होगा ना, एक इधर होगा एक इधर होगा, और इसके ऊपर में ये इन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया है. यू कैन सी दिस इज द काइंड ऑफ टेम्पल दैट इज देयर. वेरी ब्यूटिफुल कंस्ट्रक्शन वर्क. पहला तो है डबल रूफ्ड हट और दूसरा है 4 रूफ्ड टेम्पल विथ अ टावर. ठीक है, चौपाला. एंड ये देखो यहाँ पे दिया हुआ था ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वी हैव रेड अबाउट दिस, दैट इज द दोचाला एंड चौचाला. दोचाला एंड चौचाला. Got it? So just go through it, children, and if in case you have any doubts, you can get it clear in the online session. Thank you, children, and all the best to you.